So where are we? कहाँ थे हम लोग? What was the last topic? We had finished with effects of current, and thereafter lighting effects of current. Thereafter electric power. We had done. Correct? Yes, sir. Okay. So right now we are going to discuss about electrical energy. So first topic we will have for today, what is electrical energy? Second one, commercial unit of energy. I mean commercial unit of electric energy. Third, why are heating coil of heating appliances made of alloys rather than a pure metal? Next one, why is ammeter connected in series while voltmeter in parallel? Write it down fast. Written? Yes, sir. Thereafter, two more topics will be there, which are not from class 10th. The topics are taken from class 12 syllabus, but it's very easy to understand. Capacitor and capacitance. So next one will be capacitance and capacitor. And the next one, uses of capacitors. So these are the topics for today. Yes, sir. Any doubts? Any doubt? नहीं सर अभी तो नहीं नहीं सर अभी नहीं है कुछ You are not audible clearly. Please speak again. नो सर Okay. So electrical power we had finished, and right now we are going to discuss about electrical energy. When we were in class 9, we had a chapter 4 of your syllabus, that was work, energy and power. In that chapter, you had been told, you had been taught that energy is capacity to do work, or energy is ability to do work. If I am able to throw this pen, if I am able to throw, means I have ability to throw this pen, means I have energy. If I have not energy, I will not be able to throw this pen. So energy is capacity, or energy is ability. Here we have added a word before energy, that is electrical energy, or simply electric energy. Means here the capacity to do work or the ability to do work is going to be discussed about electrical appliances. Means if an electrical appliance is able to do something, suppose we talk about last day we were talking 100 watt of bulb. What does it mean? It means that P is equal to E by T, or W by T, means 100 joule upon 1 second. Means if the bulb is rated 100 watt, it means that it is doing 100 joule of work, or it is consuming 100 joule of energy. If the bulb is consuming 100 joule of work, it means that the bulb has ability to do work of 100 joule. Means the bulb is able to do something. The bulb has electrical energy. And if we talk about circuit, then the energy.
what we do in circuit, we actually make the charge flow, or we actually make the charge move. So the energy spent in moving a charge in a conductor is called electrical energy. Suppose if you have a conductor, this conductor, and you are able to move a charge in this, charge is moving. Charge is moving. It means charge is doing some work. Means the charge has energy, and this spent energy is known as इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये है ना कि आप किसी भी कंडक्टर की बात करो और उस कंडक्टर में आप चार्ज को फ्लो करा रहे हो, तो उस चार्ज को फ्लो कराने में जो एनर्जी स्पेंड होगी उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाएगा। या सिंपली कहें कि कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस और द एबिलिटी टू डू वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब लास्ट डे अगर आप पढ़ रखे हैं पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। पावर कैसे यूनिट? वॉट। टाइम का सेकंड, वॉट सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयर आफ्टर बड़ा यूनिट भी हम लोग लेते हैं, किलो जूल 10 पावर 3 जूल, मेगा जूल 10 पावर 6 जूल, ये सब बड़े यूनिट है। इलेक्ट्रिक पावर में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पावर का एक यूनिट होता है हॉर्स पावर, तो वो याद रखना है, और एक एचपी जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। तो काम कर सकते हैं, काम कितने स्पीड से करते हैं, कितने इफिशियंसी के साथ कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पावर, किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की बात की जाए तो। लेकिन अगर आप बात करें कि जो काम किया जा रहा है वो उसका उस एबिलिटी की जो बात है कि आप काम कर सकते हैं, वो कैपेसिटी की जो बात है, वो एबिलिटी की जो बात है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। या फिर किसी कंडक्टर में चार्ज को मूव करा रहे हैं, उसमें जितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। थोड़ा कॉमन सेंस से बताना, ये एनर्जी चार्ज को मिलता कहां से? किसी सर क्वेश्चन ये है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अदरवाइज तो मैं बताऊंगा ही। ये है, मैं बोल रहा हूं कि सर्किट में स्विच ऑन किया गया और चार्ज फ्लो होने लगा। इस चार्ज के फ्लो होने में जो एनर्जी स्पेंड होता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी चार्ज को दे कौन रहा है, कहां से मिल रहा है उसको? जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं ये पेन थ्रो कर रहा हूं, तो मेरे पास एनर्जी है तभी तो कर पा रहा हूं। मेरे पास एनर्जी कहां से आया? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं मेरे अंदर मतलब मेरे मसल्स स्ट्रांग है, मैं काम करने में एबल हूं क्योंकि मैं एज इनपुट खाना पीना ले रहा हूं। इसको कहां से मिल गया चार्ज को मूव करने के लिए? बैटरी से। हाँ, बैटरी। वेरी गुड। सेल या जो बैटरी है यही इसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कर पाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे पूछें कि यहाँ पे सेल नहीं है तो क्या कोई वर्क डन होगा? क्या कोई एनर्जी स्पेंड होगा? या चार्ज मूव करेगा? ओपन सर्किट है। मतलब ये है कि जो है, सॉरी की बोल रहे, सेल या बैटरी जो है उसी से मिलता है एनर्जी, और उसी से वो मूव करा पाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल का मतलब कॉमर्स, व्यवसायिक बात हम लोग करते हैं, खरीदने बेचने की बात करते हैं, और मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग भी तो कंज्यूम करते हैं, हम लोग को मिलता है सपोज पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक, फिर ट्रांसफार्मर से हमारे तक आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमें जस्ट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक भेजती है, फिर हम उसे अपने अनुसार यूज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग भरते हैं। तो ये जो बिल हम लोग भरेंगे वो किस चीज पर भरेंगे? जितना एनर्जी कंज्यूम किए उस पर, या जितना पावर है उस पर? जितना एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी पर, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किए जा रहे हैं, उन्हीं पर हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। तो मतलब आप एनर्जी स्पेंड का पेमेंट करते हैं। तो अब एनर्जी का करते हैं यानी या तो जूल में, या किलो जूल, या मेगा जूल, छोटा करें तो माइक्रो जूल या मिली जूल। बट ये सब यूनिट अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने एक नया यूनिट बनाया है जिसे हम लोग किलो वॉट आवर कहते हैं।
देखो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी बाई टाइम है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। पावर का एक्सपोनेंट वाट है और टाइम का सेकंड है और इसी को आप जूल कहते हैं। तो ये वाट सेकंड यूज ना करके, जूल ना करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया। वाट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? किलोवाट में। और सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? आवर में। तो किलोवाट आवर KWH ये यूनिट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा और इसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। अब तो आपके पास बिजली बिल वाले आते हैं, कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा अभी जस्ट। तो वो बताते हैं कि आपने 600 यूनिट यूज किया है। 600 यूनिट कहने का मतलब होता है 600 क्या? किलोवाट आवर। इसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं क्योंकि ये कॉमर्शियली यूज होता है। जनरली हम इसे यूज नहीं करते, जनरली हम लोग जूल और किलो जूल और मेगा जूल ही यूज करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो इसे यूज करती है और इसको 1 यूनिट करते हैं। अब यहाँ पर ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना चाहे या वाट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना होगा। ये रिलेशन भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना होगा। जूल में कन्वर्ट करने का ये मतलब है कि हमें वाट सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो वाट सेकंड और जूल बराबर की बात है। तो किलोवाट को वाट में मींस 1 किलोवाट आवर को आप क्या ले सकते हो? वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 536 और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड। अब ये वाट सेकंड हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶, इसी को आप जूल कहते हैं। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल और 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। मतलब अगर आप 1 यूनिट एनर्जी यूज कर रहे हो तो आप इतना जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये रिलेशन है और ये किलोवाट आवर को ही आप कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं और इसी पर बेस्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाला कैसे जाता है उसके डिस्कशन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि वाट जो है वो पावर का यूनिट है, किलोवाट जो है वो पावर का यूनिट है, बट किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का है, क्योंकि पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वाट पावर का यूनिट होगा, किलोवाट पावर का यूनिट होगा, मेगावाट पावर का यूनिट होगा, हॉर्स पावर पावर का यूनिट होगा। लेकिन किलोवाट आवर ये पावर इंटू टाइम है, पावर इंटू टाइम है, पावर इंटू टाइम है। मतलब क्या है? एनर्जी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है मतलब यूनिट निकालना है। आपको क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। और यूनिट निकालना है मतलब किलोवाट आवर निकालना है। अब ये किलोवाट आवर कैसे निकाला जाता है? आप जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज करते हो, लास्ट टाइम लोग डिस्कस किए थे, उसमें आप उसका पावर देखते हो, है ना, रेटिंग देखते हो। 100 वाट का बल्ब है या 150 वाट का फैन है या 750 वाट का आपके पास रेफ्रिजरेटर है या 1500 वाट का आप हीटर यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा रेटिंग होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि रेट निकालने के लिए या सीधा बोले कि कॉस्ट निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो आप वाट में जो यूज कर रहे हो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? किलोवाट में। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का जो रेटिंग होता है वो किलोवाट में नहीं होता है, वाट में होता है। वो 100 वाट हो, 150 वाट हो, 200 वाट हो, 500 वाट हो, ये सारा कुछ। तो इस तरीके से आप उसको निकालते हैं। 1 मिनट बच्चा। तो क्या बोल रहे थे ना बच्चा कि कॉस्ट हमें निकालना है तो आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से निकालते हो कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे फैन हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, हीटर हो, गीजर हो, सबका रेटिंग वाट में लिखा होता है। तो निकालना तो आपको यूनिट में है, तो यूनिट के लिए आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? हाँ, 1000 से कर दिए। अब ये आवर कितना यूज हो रहा है इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा 1 यूनिट बन गया ना।
Yes. अब बिजली बिल जो निकाला जाता है आपका, वो जनरली मंथली निकाला जाता है। मंथली बिजली बिल आपको लिया जाता है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेज से, कितना दिन आप यूज किए, 30 डे। कई बार आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो मंथ ऑफ जुलाई होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 31 से। कभी कभी बोल दिया जाएगा ऐसे मंथ ऑफ फरवरी 2020, तो कितना डे लेंगे? 28 आप 29 लेंगे, क्योंकि लीप ईयर है ये। Yes. अगर ये 2021 या 2019 होगा तो फिर आप 28 डेज लेंगे, है ना? तो ये सब ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। वीकली बिल अगर पूछ जाए तो 7 डेज से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर जाएंगे रेट से। ये बिजली बिल का हमारा कॉस्टिंग निकाला जाता है ऐसे। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। कोई एक लड़का है जो 100 वाट का 2 बल्ब यूज कर रहा है 6 घंटा, 6 नहीं थोड़ा कम हो गया, 10 घंटा डेली, और 150 वाट का एक फैन यूज कर रहा है, ये भी 10 घंटा ले लेते हैं फिलहाल सिंपल करने के लिए। हालांकि न्यूमेरिकल में आपको जब दूंगा तो आप देखिएगा अलग अलग भी होगा। अब आपको बिजली बिल निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट क्या है आपके यहाँ? अभी रांची में क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट? डिपेंड करता है, पर उसमें नहीं पर यूनिट कितना पैसा देना होता है? वो तो नहीं जानते, हाँ, अभी देखे नहीं सर। कभी देखे नहीं। आपके यहाँ सस्ता ही होगा। सपोज किया जाए 4 रुपए पर यूनिट ले लिया जाए, हमारे यहाँ तो काफी महंगा है, 7 रुपए 8 रुपए होता है, तो 4 रुपए पर यूनिट मान लिया जाए रेट है। अब कॉस्ट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 100 वाट को 1000 से डिवाइड करेंगे, प्लस 150 वाट 1000 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया। आवर दोनों का 10 घंटा है। डेज मंथली बिल निकालना है, सपोज किया जाए मंथ ऑफ सितंबर का, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए और रेट है 4 रुपए। अब इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। अब क्या होगा आपका? ये 100 और 100 सॉरी 150 250 हो गया अपॉन 1000 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 4, ये 4 हो गया। 300 रुपया आया आपका मंथली बिजली बिल। अगर एक लड़का एक 2 बल्ब, अच्छा सॉरी 2 बल्ब था ना, तो 100 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये 102 हो जाएगा, 200 350 हो जाएगा आप। जितना ज्यादा यूज होगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगा। 5 2 जा, सॉरी ये 10 से 10 हटा दो सीधा, ये इंटू 30 है, ये इंटू 4 है। क्या किया? 350 ऐड होके आ गया 1000 10 34, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 10 से 10, ये 35 इंटू 12, 420 रुपया मंथली बिजली बिल आया। अगर एक लड़का 100 वाट का 2 बल्ब 10 घंटा डेली यूज कर रहा है और 150 वाट का एक फैन 10 घंटा डेली यूज कर रहा है, और रेट अगर 4 रुपए पर यूनिट है। आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा कि और भी ऐड कर दिया जाएगा कि फ्रीज है जो 1200 वाट का है जो कि 5 घंटा यूज हो रहा है, बाकी ऐसे कर करके, तो ऐसा करके आपको निकाल लेना है। रेट आपका दिया रहता है, ध्यान देना होगा कि किस मंथ का निकालना है, उतना ही डेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे। वीकली बिल अगर निकालना हो तो 7 डेज से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। क्लियर यहां तक? यस सर। क्लियर है? यस सर। ध्यान ये रखना है कि यूनिट का बिजली बिल निकलता है और यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। आगे क्या है? Why are heating coils or heating appliances made of? हम लोग जो हीटिंग एप्लियंस बनाते हैं या हीटिंग एप्लियंस का जो कोयल बनाते हैं, जैसे आयरन है तो आयरन के अंदर जो कोयल यूज होता है, या हीटर है उसके अंदर जो कोयल यूज होता है, गीजर है उसके अंदर जो यूज होता है, उसका जो हीटिंग एप्लियंस मतलब वही हीटिंग कोयल जो यूज हो रहा है हीटिंग एप्लियंस का, वो प्योर मेटल का नहीं बना के हम लोग एलॉयज का बनाते हैं। क्यों नहीं हम लोग प्योर मेटल का बनाते हैं उसे, और एलॉयज का क्यों बना जाते हैं, ये सवाल है। देखो, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे हीटर हो, गीजर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, ये सब के सब वर्क करते हैं किस प्रिंसिपल पर? इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर।
ठीक है, yes, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती हैं। और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ये बात हमें जूल ने बताया था। yes, करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, टाइम ज्यादा तो हीट ज्यादा। देखो टाइम तो वैसे भी आप अपने हिसाब से यूज करते हैं, करंट आप अपने हिसाब से देते हैं, मतलब जितना आपके पास होता है। रेसिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए, रेसिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो हीट ज्यादा होगा, और रेसिस्टेंस को घटाया जाए तो हीट भी कम होगा। प्योर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनका कंडक्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। लेकिन अलॉयज जो हैं इनका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ मिक्सअप किया होता है मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब एलॉयज का रेसिस्टेंस ज्यादा, आप कंपेयर आप करो, यहां से हम एक लाइन बस यूज कर रहे हैं, H इज इक्वल टू R, क्योंकि I और T को हम छोड़ दिए वैसे ही जैसे थे। तो अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम है हीट कम होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं प्योर मेटल का, तो प्योर मेटल का रेसिस्टेंस कम है तो हीट भी क्या होगा, कम होगा, तो हीटिंग एप्लायंस आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप एलॉयज यूज करते हैं तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, हीट भी ज्यादा होता है, और ये आपके काम आ जाता है। जैसे जो भी आप यूज करते हो ना, आयरन के अंदर का जो मटेरियल होता है वो एलॉय ही होता है, चाहे आप हीटर के अंदर का जो कोयल देखो वो एलॉय होता है। तो जितने भी हीटिंग एप्लायंसेस हैं उनका हीटिंग कोयल जो होगा, उनका हीटिंग एलिमेंट जो होगा वो एलॉय का लिया जाएगा टू इंक्रीज रेसिस्टेंस, बिकॉज वी नो दैट heat is directional to resistance. Heat means here heat due to current, heating effect. So according to Joule's heating law, H is equal to I square RT, we can say that if the resistance is more, the heat produced is also more, and if the resistance is less, heat produced is also less. So to increase resistance, as we all know that alloys have more resistance rather than pure metal, so we use alloys so that if the resistance is more, the heating effect or the heat produced will also be more. Clear है? yes, आगे है कि अमीटर को आप सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों। बहुत बार आप ये देखे होंगे चीज कि जब कभी मैंने सर्किट बनाया तो सर्किट में अमीटर को यहां लगा दिए सीरीज में और वोल्टमीटर को यहां लगा दिए पैरेलल में। सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो यह समझना जरूरी है कि सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्यों होता है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज में आप तब कनेक्ट करते हैं जब आपको रेसिस्टेंस बढ़ाना हो, और पैरेलल में तब कनेक्ट करते हैं जब रेसिस्टेंस घटाना हो। ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू डाल डाल के सीख चुके हैं। अमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका लेस रेसिस्टेंस होता है, और वोल्ट मीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। अब दोनों को देखो, अगर अमीटर के पास रेसिस्टेंस कम है तो आप उसको सीरीज में भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है सर्किट के साथ। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर का चूंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है, अब वोल्ट मीटर का अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो पैरेलल में आप लगाएंगे तो वो रेसिस्टेंस को मिनिमाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप उसको सीरीज में लगा दें, सपोज करो कोई बच्चा है जो गलती से वोल्ट मीटर को यहां पे लगा दिया, तो अब वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा जो ज्यादा है सीरीज में लगा देने के साथ वो रेसिस्टेंस में ऐड हो जाएगा और वो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत बढ़ा देगा। और सर्किट का रेसिस्टेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जैसे ही बढ़ गया करंट आपका घट जाएगा। हम सबको पता है रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। तो कई मामले में रेसिस्टेंस हमारे लिए फायदेमंद होता है। जब एक्सेस करंट आपके पास फ्लो हो रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड को घटाने के लिए आप रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं सीरीज में। लेकिन जहां पे ऑलरेडी आपके पास कम करंट है, रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो वो करंट और भी घट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट ammeter has less resistance, it is connected in series because it does not eat up more current, but the voltmeter has more resistance. To reduce its value, we connect it in parallel. If we connect the voltmeter in series, it will eat up more current and it will not be beneficial for us. Clear है? yes, sir. ठीक है, बताइए बताइए। हाँ समझ गए। तो अमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं,
वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने 12th क्लास से डाल दिया है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखो समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और हम चाहते हैं कि इस बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ा दे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो ज्यादा मतलब बैटरी लगाना पड़ेगा जिसका जो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे। मतलब चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना? यस सर, यस। अगर ज्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी ज्यादा बढ़ेगा। जितना चार्ज देते जाए पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। यस सर। मतलब ये है कि Q जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है। हो रहा है ना? यस सर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या कांस्टेंट यूज किया जाता है, और यहाँ पे ये C यूज किया जाता है, और ये Q अपॉन V हो गया। यही कैपेसिटेंस है। हम ये बता रहे हैं आपको कि किसी भी बॉडी का ये पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होती है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो कैसे समझ में आएगा। जब टॉपिक हम चार्ज पढ़ा रहे थे एकदम डे 1 को, तो एक चीज हम बताए थे कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, और उसमें 3 मेथड डिस्कस किए थे हम लोग, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। याद आ रहा है? 12th में हम लोग इन तीनों ही प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इंडक्शन वाले प्रोसेस को हम यूज करते हैं। बाय फ्रिक्शन में क्या किया जाता है? चार्ज को मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करेंगे तो वो चार्ज उसमें आ जाएगा। बाय कंडक्शन एक दूसरे को कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज आएगा, और बाय इंडक्शन अगर एक दूसरे के नजदीक रखेंगे तो चार्ज आएगा। सपोज किया जाए ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज है। चार्जलेस कुछ नहीं होता, अनचार्ज है। तो अगर इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाएंगे तो इस अनचार्ज बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इंड्यूस होगा। पॉजिटिव की नेगेटिव? वो तो नेगेटिव होगा सर। जो इस तरफ नेगेटिव आएगा। यस सर। और इस तरफ पॉजिटिव। एक्चुअली आपने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे बस उसको मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे उसको अलग अलग कर दिया है। तो अभी भी ये चार्ज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो फिलहाल ये क्या है? न्यूट्रल है। अब आगे आप क्या करेगा कि इसका अर्थिंग कर देगा। अर्थिंग कर गए तो ये चार्ज कहां चला गया? अर्थ में चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बन गया है और अब ये बॉडी क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। इसी सिस्टम को आप कैपेसिटर कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? समझे। पंखा में एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर। देखें? नहीं सर। कंडेंसर नहीं देखे? उसका मतलब नहीं पता, पर वो सिलेंड्रिकल शेप होता है और उससे 2 वायर निकला। यहाँ पे तो सब कुछ नया नया लगा हुआ, अदरवाइज हम तोड़ के आपको दिखा देते। वो 2 वायर निकले होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। जनरली सिल्वर कलर का दिख रहा होता है आपको, एल्यूमिनियम होता है। देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो चार्ज को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है। चार्ज को स्टोर क्यों करना है? ताकि हम उनको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सके। अब तक जो हम लोग सीख रहे थे, चार्ज को फ्लो कराना सीख रहे थे, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट सीख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे थे, हर जगह चार्ज को मूव करा रहे थे। मतलब हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें चार्ज सप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसको आप मूव करा रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं ना कि उसी चार्ज को स्टोर अगर किसी बॉडी में कर लिया जाए तो बाद में उस चार्ज को क्या किया जा सकता है? यूटिलाइज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। यही काम किया जाता है कैपेसिटर में। मतलब कैपेसिटर एक बोले तो कंप्लीट एक सिस्टम है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है वेरी लो पोटेंशियल पर, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो है वो रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। किसी भी बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी का 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी उसको कैपेसिटेंस कहेंगे। और अगर कंडक्टर की बात करें तो किसी पूरे मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का चेंज लाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी
उसको कैपेसिटेंस कहेंगे। और कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर पाता है एट वेरी लो पोटेंशियल। तो वो जो कंडेंसर है ना, वो एक्चुअली कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है और उसमें चार्ज स्टोर होता है। आप नोटिस करना, पंखा बंद करने के बाद भी, पंखा आप स्विच ऑफ कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर आप कंडेंसर को टच कीजिएगा ना तो आपको झटका लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ चार्ज वो अपने अंदर क्या किया रहता है, स्टोर किए रहते हैं, और स्टोर्ड चार्ज की वजह से आपको झटका लगता है। क्लियर है? सर एक बार इसका आगे क्लास 12th में आप बहुत सारे कैपेसिटर्स का टाइप पढ़ेंगे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, तो ये सारे जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, ये सब कैपेसिटर्स के टाइप्स होंगे। पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि बॉडी में चार्ज को स्टोर करा देना कैपेसिटर है, उस बॉडी को कैपेसिटर कहते हैं। और वो जो स्टोर कराने के लिए आप चार्ज जो दे रहे हैं, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि Q डायरेक्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। तो बॉडी को चार्ज करने का ये जो इंडक्शन वाला प्रोसेस है, इनफैक्ट अगर इस पूरे सिस्टम की बात की जाए, ये दो बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, एक में चार्ज आया और जिसमें चार्ज आया उसको फिर अर्थिंग कर गए, ये पूरा सिस्टम ही कैपेसिटर कहलाता है। और यही काम आप करते हैं, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, चार्ज को स्टोर कराना होता है। और जैसे सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा, कैपेसिटर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही लाइन बराबर। थोड़ा सा अगर और आगे हम बढ़े तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी आपको पढ़ना होता है, और वहां पर बेस्ड उस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना होता है। और उसमें आप क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हम डाल दें कैपेसिटर वाला, 12th के एनसीईआरटी से उठा के आपको सॉल्व करवाएंगे। इसमें अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ऐसे कनेक्ट कर दें पैरेलल हो जाएगा सर। ये पैरेलल, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है ना बाबू वो उल्टा हो जाता है। सीरीज में रेसिस्टेंस सॉरी कैपेसिटी जो होगा वो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन होगा। और पैरेलल में जो होगा वो होगा c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। डेरिवेशन हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से रेसिस्टेंस को हम लोग फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से, सेकंड का टेल थर्ड के हेड से जोड़ते थे, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता था, और सारा हेड एक तरफ और सारा टेल एक तरफ, उसको पहला कॉम्बिनेशन सेम होगा, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1/c इज इक्वल टू सीरीज में 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगा, जबकि पैरेलल में c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 होगा। तो यही सारा कुछ है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैपेसिटेंस को ये क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को डिफाइन क्या करेंगे? कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और द अमाउंट ऑफ ऐसे आप बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल और 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर द डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो अभी बहुत बेसिक लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज वो पूरा सिस्टम जो होता है उसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर करते हैं कि जितना चार्ज इसमें होगा दूसरे वाले में उतना ही चार्ज आ जाता है, और फिर आप उसको अर्थिंग कर देते हो और वो बॉडी चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर जो होता है वो तो चार्ज को लो पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है, पर अगर चार्ज बहुत ज्यादा हुआ तब तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो कैसे करेगा लो पोटेंशियल डिफरेंस में उसको? थोड़ा तेज बोलिए प्लीज, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर जो कैपेसिटर होता है वो तो ये पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस में इसको स्टोर करता है चार्ज को, पर अगर चार्ज ही बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो कैसे लो पोटेंशियल डिफरेंस में करेगा स्टोर? वही तो बात है ना, अगर आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दें तो आप चार्ज बढ़ाई के क्या करेंगे। यहां पर यह समझना है कि अगर आप बहुत बड़े जनरेटर यूज कर लिए और जनरेटर से आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप तो जनरेटर से अपना एनर्जी बर्बाद भी तो कर रहे हैं। yes. जैसे
आगे हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे कि करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं हम लोग, करंट इंड्यूस कैसे करते हैं, चाहे थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है या और भी जगह पे। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऐसा मीन यूज करना है जो आपके लिए फिलहाल बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। मतलब ये कि अगर हम 12 वोल्ट का बैटरी ले लिए और कुछ बीच में उठपटांग हरकत करके कुछ भी करके 8 वोल्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हैं? नो सर। इनफैक्ट कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसमें तो उल्टे हम 4 वोल्ट बर्बाद कर रहे हैं। कायदे से हमें 12 वोल्ट देके 144 वोल्ट प्रोड्यूस करना है। अब उसके लिए चाहे हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, आप चाहे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराओ, आप चाहे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराओ, आप चाहे थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराओ, चाहे फिर आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराओ, जो जनरेटर में हम लोग करते हैं। तो एक्चुअली आप कम पोटेंशियल देके चार्ज को जब कंजर्व कर पाए या चार्ज को जब स्टोर कर पाए, तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज जो साइंस में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और कुछ है? कुछ नहीं। देख लीजिए एक बार आज क्या क्या पढ़े हम लोग। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी स्पेंट टू मूव अ चार्ज इन अ कंडक्टर is called electrical energy. It is written by capital letter E. It is a scalar quantity and its unit is joule, also known as watt second. Second, commercial unit of energy. Commercial unit means the unit of energy used by electricity department, and it is kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Thereafter, how do we calculate electrical energy? Or how do we calculate our electricity bill? We just divide by 1000 to the watt given, and thereafter we multiply it by hour, by days, and by rate, and we get the value of electricity bill. Thereafter, we discussed about why we use alloys as heating element in heating appliances rather than a pure metal. As we know that pure metal has less resistance, it will create less heating effect, but the alloys have more resistance, it will create more heating effect, which is required. That's why we use alloys in a heating appliance as heating coil or heating element rather than a pure metal. Next, why do we connect ammeter in series in a circuit and voltmeter in parallel in a circuit? Actually, ammeter has less resistance, so we connect it in series and it does not eat up more current. But the voltmeter has more resistance, and to avoid the more eating up of resistance, we connect it in parallel combination. Next, capacitance and capacitor. The ratio of charge and potential of a body is called capacitance, or the amount of required the amount of charge required to increase 1 volt of a body is called capacitance, and the device which stores charge at very low potential is called capacitor. Capacitors, uses of capacitors are used in fans, in motors, in television, in radios, etc. Combination of capacitors, there are two types of combination of capacitors, series combination and parallel combination. In series combination, we connect the tail of first capacitor to head of second, and the tail of second capacitor to the head of third. And in parallel combination, all the heads are connected on one point and all the tails are connected on another point. For a series, the formula is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, and for parallel, the formula is C is equal to C1 plus C2 plus C3. If you have any doubt, please ask to me, otherwise I am going to end this meeting. एक सेकंड Sorry? एक सेकंड देख लेता है। Please fast. I mean, please speak loudly. एक सेकंड सर, देख के बताते हैं। Okay. सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय कंज्यूमिंग the work done or the capacity to do work by any electrical appliance. सही है definition. ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर। और डिफाइन कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है।
यस सर, ठीक है सर। तो होमवर्क करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और अभी पढ़ने टाइम अगर कहीं डाउट आउट लगे कुछ तो भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है।